Amid mounting concern over toxic air quality in the national capital, the Delhi government has announced a fresh set of steps to rein in pollution in the national capital region. Key among them is the implementation of the no PUC, no fuel rule from Thursday. Now, only BS6 compliant vehicles registered outside Delhi will be allowed to enter the city, while restrictions on construction activity and trucks carrying construction material will continue under GRAP norms. Adding to the crisis, dense fog enveloped Delhi NCR on Thursday morning, reducing visibility to 150 meters at Palam and 200 meters at Safdarjung airports, disrupting road traffic and air traffic and also prompting an orange alert. Weather officials warned foggy conditions may persist in early mornings as winter intensifies. Let's in fact take a look at what vehicle is going to be banned and what are the vehicles that are going to be exempt under the new directives of the Delhi government. I have my colleague Yash Ahuja who will take you through the details. Yes, Shivani, as you very rightly pointed out, let me tell you the type of vehicles that have been banned under the new pollution curbs that have been implemented in the national capital. Now, since these have been implemented, questions have been rising as to if people can take their vehicles out of Delhi and can come back, will they be stopped at the border or not? So, first of all, if you have a non-BS6 compliant vehicle that is registered outside Delhi, and it also includes all BS3 petrol, BS4 petrol and older norm vehicles. These vehicles have been banned. You will not be allowed to enter Delhi if you have a non-BS6 compliant vehicle, which also includes BS3 petrol diesel and BS4 petrol diesel. Now shifting next is older out-of-state petrol and diesel vehicles that do not meet the BS6 standards. So we've already seen that diesel and petrol vehicles that are older than 10 and 15 years respectively are banned in the national capital. This is just a push into that same theme. This now includes BS6 standards also. Previously it did not include that, it just defined an age. Now the Supreme Court has also put in a little BS6 standards asterisk. Now talking about vehicles that have been exempted. So vehicles carrying essential commodities or providing emergency services like ambulances, like tourist buses, these are not being banned even if an ambulance is not BS6 compliant, even if an ambulance is BS3 petrol and BS4 diesel, they can be allowed to enter the national capital. Next and lastly, BS6 compliant vehicles, clean fuel vehicles, and public transport. So BS6 compliant vehicles are usually the vehicles which people have bought from 2024 onwards, 2023 onwards, Those are all BS6 compliant vehicles. Clean fuel vehicles include CNG, include hybrid vehicles and electric vehicles. So these are not being banned in the national capital. Furthermore, public transport like buses, like touristers, these will operate as usual. So this is the whole rundown of what has been banned and what has been exempted to enter the national capital. Back to you. All right. Thank you so much, Yash, for all those details. In fact, joining us live from the Chilla border is Ali Khan, my colleague. अली, जब हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, बहुत सारे मेजर्स आज दिल्ली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं, इंक्लूडिंग वेहिकुलर बैन जो कि BS6 कंप्लायंट नहीं है, और बॉर्डर एरियाज़ में ऑब्वियसली एंट्री क्योंकि बंद हो गई है तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही होगी. आप हमें दिखाएं कि वहाँ अभी स्थिति क्या है, और अगर लोग आपके पास हैं तो उनसे भी बात करिएगा. बिल्कुल शिवानी, नोएडा की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के तमाम जितने भी दिल्ली के एंटर करने वाले बॉर्डर्स हैं उन पर तमाम पे चेकिंग तेज कर दी गई है, क्योंकि
आज से दिल्ली में तमाम BS6 से नीचे के जो भी वाहन है उनकी एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें डीजल और पेट्रोल के वाहनों के प्रतिबंधित है। ये समझने वाली बात है कि BS6 से नीचे के डीजल और पेट्रोल के वाहनों को ही प्रतिबंधित किया गया है। CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो पहले की तरह अभी भी दिल्ली में जा सकेंगे। वही जो जरूरी सामान, जरूरी सेवाएं हैं, आपातकालीन सेवाएं वाले व्हीकल्स हैं, वो भी दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। तो अभी तक ये स्थिति है। आप दिल्ली की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली बॉर्डर पे गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही है। तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो भी जिन पे भी डाउट लग रहा है कि BS6 से नीचे के नॉर्म्स के व्हीकल है, तो उन्हें रोका जा रहा है और उनकी चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ट्रैफिक विभाग की तरफ से उन्हें देखा जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें रोक के बिल्कुल तमाम देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई व्हीकल रोका जाता है, तो उसके ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है अगर वो BS6 या उससे नीचे का व्हीकल होता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे वाहनों की चेकिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से, जिसमें जो भी ऐसा वाहन संदिग्ध प्रतीत होता लगता है जो BS6 से नीचे पेट्रोल डीजल वाहन होगा, उसकी लगातार उसकी चेकिंग की जाती है, उन्हें रोका जाता है और रोकने के बाद अगर वो BS6 से नीचे का वाहन होता है तो उसके ऊपर चालान की कार्रवाई की जा रही है। तो अभी ये स्थिति नोएडा और दिल्ली के नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, लगातार जो भी वाहन संदिग्ध प्रतीत हो रहा है उन्हें रोका जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। तमाम ट्रैफिक विभाग की ट्रैफिक पुलिस की टीमें अलर्ट लगी पे है और साथ ही साथ जो भी PUC नॉन PUC सर्टिफिकेट वाले वाहन हैं उन्हें डीजल और पेट्रोल और तमाम जो भी ईंधन है उसे देने पे रोक लगा दी। PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको CNG, पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पाएगा। तो ये भी दिल्ली सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी चिल्ला बॉर्डर की ये तस्वीर है कि लगातार लोगों की सुबह से ही यहाँ पे लगा हुआ है। चेकिंग की वजह से हल्की फुल्की जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली है, क्योंकि लगातार चेकिंग चल रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। वैसे पीक आवर्स में सुबह के समय जाम लगा था काफी ज्यादा, तो पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए चेकिंग को थोड़ा स्लो कर दिया था पीक आवर्स के लिए, कि ऐसा ना हो कि लंबा जाम लग जाए और कोई गाड़ी ऐसी फंस जाए। तो उसको देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बरती थी, पर लगातार दिन भर ये चेकिंग चलती रही। अली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पीछे बहुत सारे अथॉरिटी के लोग भी खड़े हैं, अगर आप उनसे बात करें और लोग भी हैं उनसे भी बात करें, क्या सिचुएशन है, कितने उन्होंने गाड़ियों को रोका है, कितनों को वापस भेजा है, जरा उनसे जानकारी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे सामने दिल्ली विभाग के पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेंगे कि सर क्या नाम है आपका? आप ये बताइए अभी तक कितने वाहनों को रोका जा रहा है, किस तरह के वाहनों को रोका जा रहा है? तो अभी जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ मौके पे जो मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी हम और भी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। सर, किस तरह के वाहनों को रोका जा रहा है, कुछ बता पाएंगे आप? अभी तक कितने वाहनों को रोका गया, कितने का चालान करा गया है? सर ये ठीक है ना, आपको कंफर्म होते कंफर्म मिल जाएगी। आज जिला बॉर्डर की अगर हम बात करें तो कुछ कार्रवाई की गई है आज यहाँ पे? चालान भी करें, व्हीकल भी रिटर्न किए हैं। जी, चालान भी करें और व्हीकल रिटर्न करें। तो लगातार ऐसे वाहन आ रहे हैं जिन्हें रोका जा रहा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे वाहन जिनके साथ जिनमें कोई भी समस्या या BS6 से नीचे के वाहन है उन्हें रोकी जा रहा है, उन्हें वापस भी कराया जा रहा है, साथ साथ चालान की प्रक्रिया की कार्रवाई करी जा रही है। क्योंकि आपको समझना होगा कि BS6 से नीचे के वाहन ग्रैब 2 के ग्रैब 4 के नियमों के तहत, ग्रैब के नियमों के तहत जो भी चालान होगा वो 20,000 रुपए का। तो भारी भरकम जुर्माना, अगर आप दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी जेब पे भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है और दिल्ली में प्रवेश तो मिलेगा ही नहीं। तो ये आप सब समझने वाली बात है कि लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि आज सुबह से हम ये लगातार ग्राउंड पे है और देख रहे हैं कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिन्हें जानकारी का अभाव है कि ग्रैब के नियमों के साथ साथ दिल्ली में BS6 से नीचे के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। शिवानी, धन्यवाद अली आपका हमारे साथ